Hi everyone. So we are doing economics from NCERT and we are doing Indian economic development. As of now, the chapter that we are going to do today is human capital formation in India. So let's start the chapter. NCERT, we are reading directly word by word, line by line from NCERT. And first of all, do give it a read to this quote, which actually says that, through which Alfred Marshall wants to convey that, it is very important to spend public and private funds both on education, and it is not only a direct benefit but also an investment. So it helps people to get aware and just to analyze and basically polish their own capabilities. So yeah, that's that. Then let's start with the introduction. Think of one factor that has made a great difference in evolution of mankind. ऐसा क्या फैक्टर है जिसने मैनकाइंड का एवोल्यूशन में मदद की है? वो परहैप्स एक कैपेसिटी है इंसान की कि इंसान इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, बात करके किसी से, गानों के थ्रू या और इलेबोरेट लेक्चर्स के थ्रू. लेकिन विद टाइम लोगों को रियलाइज हुआ कि ये जो उनकी कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन स्टोर करने की, इसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल चाहिए ताकि ये एफिशिएंटली हो पाए, राइट? सो दे नीड अ ट्रेनिंग एंड skill to do things efficiently. We know that the labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person. Obviously, educated person कुछ काम करने आएगा, उसका labor skill अलग ही होगा as compared to the uneducated one, and hence the former is able to generate more incomes than the latter, and his or her contribution to economic growth is consequently more. All right. So education is sought not only as it confers higher earning capacity on people, but also for its other highly valued benefits. It gives one a better social standing and pride. It enables one to make better choices in life. It provides knowledge to understand the changes taking place in society. It also stimulates innovation, right? So moreover, the availability of educated labor force facilitates adaptation of new technologies, and economists have stressed the need for expanding educational opportunities in nation as it accelerates the development process. So it is very important to accelerate the development process. And let's see what this picture is all about. This picture is saying that with equal size of land, how is it different that his yield is more than mine? क्या फर्क हो सकता है? यील्ड में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बट इनका यहाँ पे पर्पस है कि एडिक्वेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू फार्मर्स कैन रेज प्रोडक्टिविटी इन फार्म्स. तो बहुत फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो यहाँ पे बात करें कि ट्रेनिंग दी है फार्मर को, एजुकेशन दी है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी एक किसान की दूसरे किसान से बेटर है. ठीक है. What is human capital? Just as a country can turn physical resources like land into physical capital like factories, similarly it can also turn human resources like nurses, farmers, teachers, students into human capital like engineers and doctors, right? So they're saying कि physical, आप physical resources जो होते हैं उनको physical capital बना सकते हो, ऐसे ही human resources होते हैं उनको आप human capital में turn कर सकते हो. Societies need sufficient human capital in the first place in the form of competent people who have themselves been educated and trained as professors and other professionals. Okay, so society needs that. This is need of an hour. And then in other words, we need good human capital to produce other human capital. वी नीड ह्यूमन कैपिटल. एक ह्यूमन कैपिटल से और ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस होता है, तो हमें अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए. फॉर इंस्टेंस, अगर एक टीचर ह्यूमन कैपिटल है, एक प्रोफेसर ह्यूमन कैपिटल है, वो जितना अच्छा पढ़ाएंगे, जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा, उतना ही अच्छे आप ह्यूमन कैपिटल बनोगे, राइट? सो से नर्सेस, फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दिस मीन्स दैट वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल to produce more human capital out of human resources. Understand, we need more and more of investment into this sector. पैसे आएंगे तभी तो ग्रो करेंगे ना. So let us understand a little more of what human capital means by posing the following questions. What are the sources of human capital? क्या sources हैं human capital के? Is there any relation between human capital and economic growth of a country? Is the formation of human capital linked to people all around development, or as it is now called human development? So वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं जिनके वो आंसर्स आपको चैप्टर में देने वाले हैं. What role can government play in human capital formation in India? सरकार क्या कर सकती है? बेसिकली क्या सोर्सेज होते हैं? ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेस पता चल गया ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है. देन फॉर्मेशन है अगर ह्यूमन कैपिटल का, क्या वो लिंक्ड है ऑल राउंड डेवलपमेंट से?
तो ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक्ड है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दीज आर द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले आंसर करेंगे सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्सेस। तो जब इन्वेस्टमेंट होगी पढ़ाई में, एजुकेशन में, वो मेन सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। पैसे ही नहीं होंगे, इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, जैसे पहले नहीं थे, स्कूल्स नहीं होंगे, अगर यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, तो फिर तो एजुकेशन कैसे स्प्रेड होगी। देर आर सेवरल अदर सोर्सेज एज वेल, वी आर सेइंग देर आर सेवरल, बट मेन जो है वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ, on the job training, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, अदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये अदर सोर्स है कि हेल्थ में भी इन्वेस्ट करो, ऑब्वियसली कोई हेल्दी होगा तो ही आगे पढ़ पाएगा, काम कर पाएगा, बेटर कर पाएगा, ह्यूमन कैपिटल परफॉर्म कर पाएगा। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए, माइग्रेशन, दीज आर अदर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। वाई डू योर पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन? क्यों पैसे स्पेंड करते हैं आपकी पढ़ाई पे, या अभी भी आप इंटरनेट के थ्रू अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, क्यों पैसे स्पेंड कर रहे हो पढ़ाई पे, ठीक है। सो yeah, spending on education by individual is similar to spending on capital good by companies. Companies capital good पे खर्चा करती हैं ताकि वो और better produce कर पाए, उनकी productivity enhance हो पाए, output increase हो पाए, profit increase हो पाए। Similarly एक individual education में spend करता है, ठीक है। तो वहां पे एजेंडा क्या रहता है, इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम, कि फ्यूचर जितना मैं पढ़ी हुई होंगी उतना मेरी फ्यूचर इनकम इंक्रीज हो जाएगी। लाइक हालांकि आई थिंक इट वुड बी ग्रेट इफ यू कमेंट कि क्या ऐसा हो रहा है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने का, इज इट बीइंग फुलफिल्ड? I mean, that's a very great debate that one can go on. Yeah, like education, health is also considered as an important input for development of a nation as much as it is important for development of an individual. Okay, so who can work better? A sick person or a person with sound health? कौन better काम कर सकता है? आपको भी पता है कोई sick इंसान एक टाइम से ज्यादा productive हो ही नहीं सकता. A sick laborer without access to medical facilities is compelled to abstain from work and there is loss of productivity. Hence, expenditure on health is an important source of human capital formation any day. सो इमेजिन आई एम नॉट डूइंग वेल, ठीक है। सो ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड यू नो स्टिल आई हैव टू टेक अप क्लासेस। सो ऑन दोस क्लासेस आई गेट अ रिव्यू दैट यू नो दोस क्लासेस वर नॉट अप टू द मार्क और नॉट ऑफ माय स्टैंडर्ड। तो ऐसा क्यों हुआ? मैं तो मैं ही हूँ, मेरी एजुकेशन भी सेम है, मेरे को तो किसी ने चाबी मार के चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन चेंज क्या हुआ? मेरी हेल्थ का, हेल्थ से मेरी प्रोडक्टिविटी का। तो वो चीज मैं जबरदस्ती करने भी आऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो लानी है, मुझे इस टाइम लानी है, मुझे इस टाइम अपनी क्लासेस लेनी है, इस टाइम मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे उनके मार्क्स लाने हैं। बट ऑब्वियसली टीचर इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, right? And I think it would be great if you guys as a student, you know, start respecting your teachers more and feel more grateful about your teachers. मतलब we as students, when we are students, we can easily say ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता। Okay, that's fine. Everybody has a different style. अच्छा या बुरा जज करने वाले we are nobody. But at least recognize the effort that goes behind. You know, they keep standing the entire time or they keep speaking the entire time. गला खराब हो, जुकाम हो, बोलते रहना पड़ता है, ठीक है। पैर में दर्द हो, कुछ हो, खड़े रहना पड़ता है, रोज शो अप करना पड़ता है, आईज में पेन हो जाता है, सर में दर्द हो, फिर भी आपकी आंसर कॉपीज चेक करनी पड़ती हैं। सो टीचर गोज थ्रू अ लॉट and you should start respecting. But yeah, coming back to the original topic, that yes, if your health is not doing fine, you'll be less productive and that will hamper the work quality that you are delivering. ठीक है। Hence, the expenditure on health is an important source. इसीलिए खर्चा करना हेल्थ पे बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर खुद बीमार हो जाए तो वो लोगों का इलाज नहीं कर पाएगा, इसी तरह अगर एक इंजीनियर बीमार हो जाए तो वो चीजें ठीक नहीं कर पाएंगे, टीचर बीमार हो जाए वो पढ़ा नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हेल्थ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोकस जब हम करते हैं ना हेल्थ पे प्रायोरिटाइज, तो हम हमेशा अपने क्लाइंट सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या होती है कि कोई भी बीमारी आने से पहले हम प्रिवेंट कर लें, यानी हम कुछ ऐसे मेजर्स ले लें कि वो बीमारी आए ना, राइट। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम वो चीज करेक्ट कर दें जिससे कि हम वो बीमारी ना आए। क्योर करना होता है, वो बीमारी आ गई है, अब उसका सोल्यूशन निकालो, अब उसका इलाज करो, उसको क्योर करना कहते हैं। सो क्या बेटर है, बीमारी आ गई फिर इलाज करो या बीमारी आने ही मत दो? तो वही मतलब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन। कोविड आपको ना हो इसके लिए वैक्सीन लगवा रहे थे ना आप, या कोविड हो तो उसका असर उतना ना खतरनाक हो। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन किस तरह की होती है? एक होती है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन होती है मेडिसिनल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, ये होती है क्यूरेटिव, ठीक करने के लिए, ठीक है। सोशल मेडिसिन होती है, ये होती है
सोशल मेडिसिन किसको कहते हैं? हेल्थ लिटरेसी की अवेयरनेस स्प्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंक्रीज हो रहा है लोगों में, सो लोग चेक नहीं कराते जाके, जबकि एनुअली हर वुमेन को जाकर एक टेस्ट करा लेना चाहिए जहां पे उनको पता चले कि हाँ कोई इशू नहीं है। बट क्योंकि हमें लगता नहीं हमें तो होगा ही नहीं, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन डोंट गेट देमसेल्व्स चेक, राइट? सो ये सोशल मेडिसिन है स्प्रेड करना, ये लिटरेसी स्प्रेड करना, यू नो दिस थिंग इज गेनिंग पेस एंड वन शुड कीप अ ट्रैक आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, ठीक है? एंड प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन आर अदर फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। यार सही पानी और सही सैनिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आप खराब पानी पियोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको पेट से रिलेटेड और बहुत सारी डिजीजेस होंगे, पानी तो सबसे पहले कैच करता है। मतलब जैसे इफ यू गिव मी थोड़ा सा खराब पानी, तो उससे फटाफट से स्टार्ट प्यूकिंग, वॉमिट होना, ये होना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। इसी तरह अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज ठीक नहीं होंगी, I can't talk on behalf of men, but as women, I know that sanitation facilities are very, very important. Expenditure on proper sanitation is very critical. Otherwise, women are tend to get a lot of diseases. UTI is one of the examples, right? So, health expenditure directly increases supply of labor force and is thus the main source of human capital formation. Okay, firms spend ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे फर्म स्पेंड करती है, क्योंकि अगर कोई भी आपके फर्म में एंटर होता है, आपके यहाँ पे उसको जॉब मिलती है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड और आर एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट हम लोग जो पढ़कर आते हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि जो किताबों में पढ़ा था वो जॉब में काम नहीं आया। तो इसलिए जॉब ना अपने हिसाब से आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे देते हैं कितनी चीजों की, सो दैट यू आर अवेयर कि आपको क्या करना है, ठीक है? दिस मे टेक डिफरेंट फॉर्म्स। अब ये भी अलग अलग तरीके से होती है। एक में वर्कर्स में बी ट्रेन्ड इन फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर, यानी आपकी कोई बॉस है वही ट्रेनिंग दे रहा है अपने जूनियर को। एक होता है वर्कर में बी सेंट ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए। इन बोथ दीज केसेस फर्म्स इनकर सम एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली दोनों ही केस में खर्चा आएगा, राइट? सो फर्म्स विल thus insist that the worker should work for a specific period of time after their on the job training, during which it can recover the benefits of the enhanced productivity owing to the training। तो वो सोचते हैं कि यार ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ना इमीडिएटली बाद में चला जाए, तो इसलिए आजकल कितनी फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट है, एक मिनिमम क्लॉज रखती है जहाँ पे आपको इतना टाइम काम करना पड़ेगा कि आपको जितना सिखाया, आप पे जितना खर्चा करा, अब आप उसका रिटर्न तो दो, वैसा परफॉर्म तो करो कि एक ही दिन में उसका बेनिफिट रिकवर कर दो। मे बी ऐसी डील्स क्रैक करो, ऐसी इनोवेशन करो कि आप जस्ट रिकवर द मनी। Okay, people migrate in search of jobs that fetch them higher salaries than what they get in their native places। कोई माइग्रेट क्यों करता है? अगर वो जॉब की तलाश में कर रहा है तो आपको भी पता है कि उसको बेटर सैलरी चाहिए, तभी तो। अगर सेम सैलरी मुझे अपने घर के पास जाने में मिल रही है तो मैं क्यों दूर तक ट्रैवल करूंगी, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। रूरल से अर्बन एरियाज में लोग क्यों जा रहे हैं? गांव से काम की तलाश में ही आता है अर्बन एरिया में, कोई कुक बन जाता है, कोई ड्राइवर बन जाता है, स्मॉल, अगर स्किल्ड नहीं हो तो। अगर स्किल्ड हो, पढ़े लिखे हो तो रूरल एरियाज में वैसी जॉब ही अवेलेबल नहीं है जो आप करना चाहते हो। सो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा कारण होता है रूरल अर्बन माइग्रेशन का। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्संस लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज दैट दे मे गेट इन सच कंट्रीज। तो आजकल कितने ही इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आप देखोगे यूएस, दुबई एंड कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज हाँ ऑब्वियसली उन्हें बेटर सैलरी मिल रही है जो उन्हें इंडिया में रह के नहीं मिलेगी। Migration in both these cases involves cost of transport, higher cost of living in migrated places and psychic cost। So कॉस्ट देखो माइग्रेशन में कैसी कैसी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, फिर लिविंग की कॉस्ट, रहने का खर्चा। जितने आप घर में जब रहते थे तो आप अपने घर में रेंट नहीं दे रहे थे, आपके पेरेंट्स के घर में रह रहे थे आप, सो आप इजीली रह रहे थे। अब बाहर जाओगे वहां रहने का खर्चा भी महंगा होगा क्योंकि आप रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांजिट कर रहे हो। देन साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है? एक स्ट्रेंज कल्चरल सेटअप में, सोशो कल्चरल सेटअप में रहने में एक साइकिक कॉस्ट भी होती है। द एनहांस्ड अर्निंग इन द न्यू प्लेस आउटवेज द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। लेकिन इतना महंगाई होने के बाद, इतना महंगा पड़ने के बाद भी माइग्रेट करना महंगा पड़ रहा है। बेसिकली गांव से शहर में माइग्रेट करना महंगा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कॉस्ट सारी रिकवर हो जाती है जो कि आपको न्यू सैलरी मिलती है उसमें इतना हाइक होता है कि ये सब कवर हो जाता है उसमें। Hence, expenditure on migration is also a source of human capital formation। Okay, then people spend to acquire information relating to the labor market and other markets like education and health। For example, people want to know
the level of salaries associated with various types of jobs, whether the educational institutions provide the right type of employable skills and at what cost. So this information is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as efficient utilization of acquired human capital stock. Expenditure incurred for acquiring information relating to labor market and other markets is also a source of human capital formation. जितना आपके पास better information होगी उतना आप अपने आप को better equip कर सकते हो with all the skills required, expertise required, education. So that's also in a way formation or a source of human capital formation. Okay. Then you have physical capital and human capital ka difference. Both the forms of capital formation are outcomes of conscious investment decisions. Decisions regarding investment in physical capital is taken on the basis of one's knowledge. In this regard, the entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rate of return to a range of investment and then rationally decides which one of the investment should be made. The ownership of physical capital is the ownership of physical capital is the outcome of conscious decision of the owner. The physical capital formation is mainly an economic and technical process. Economic और technical process है, आपको पता होता है, owner को पता होता है. A substantial part of human capital formation takes place in one's life when he or she is unable to decide whether it would maximize his or her earnings. ठीक है. Children are given different type of school education and healthcare facilities by their parents and society. The peers, educators, society influences the decision regarding human capital investment even at the tertiary level, that is at the college level. Moreover, human capital formation at this stage is dependent upon already formed human capital at the school level. So human capital formation is partly a social process and partly a conscious decision of the possessor of human capital. तो जो possess कर रहा है human capital partly उसका decision है, partly एक social process है. You know that the owner of physical capital, say a bus, need not be present in the places where it is used. ठीक है, whereas a bus driver who possesses the knowledge and ability to drive of the bus should be present when the bus is used for transportation. तो physical capital अपनी जगह present होना हो, owner से separable है basically. क्योंकि अगर एक बस का मालिक है तो जहां जहां बस जा रही है वहां बस का मालिक नहीं जा रहा या कंपनी नहीं जा रही, तो इट इज सेपरेबल. फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम द ओनर. वेयर एज ह्यूमन कैपिटल, अगर मैं ड्राइवर हूँ, बस ड्राइवर हूँ और मेरे को वो स्किल आता है कि मुझे पता है बस कैसे ड्राइव करनी है, तो जब भी बस कहीं जाएगी मेरा होना जरूरी है, तो मेरा स्किल मुझसे इनसेपरेबल नहीं है. ह्यूमन कैपिटल इज नॉट basically not separable from its owner. Okay, that is the thing. Physical capital is tangible, छू सकते हो, and can be easily sold in the market like other commodity. बस है, उसे छू सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो. ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल. एक बस ड्राइवर के बस ड्राइविंग स्किल को ना ही छू सकते ना ही बेच सकते मार्केट में. ठीक है. सो या human capital is not sold in the market, only the services of human capital are sold. Services है अगर human capital की, obviously services can be sold, but human capital in itself cannot be sold in the market. Okay. Hence, there arises the necessity of the owner of human capital to be present in the place of production. The physical capital is separable from its owner, whereas human capital is inseparable from its owner, as I've already explained. The two forms of capital differs in terms of mobility across space. Physical capital is completely mobile between countries, except for some artificial trade restrictions. Okay, human capital is not perfectly mobile between countries as movement is restricted by nationality and culture. तो nationality and culture की वजह से human capital may be move ना कर पाए, physical capital move कर सकता है. Okay, therefore physical capital formation can be built even through imports, and whereas human capital formation is to be done through conscious policy formulations in consonance with the nature of society and economy and expenditure by state and individuals. ठीक है. Both forms of capital ये similarity है, depreciate करते हैं with time, but nature of depreciation अलग होता है, तरीका अलग होता है. ठीक है. Between the two, continuous use of machine leads to depression and changes of technology
makes a machine obsolete. In the case of human capital, depreciation होता है aging के साथ, लेकिन वो depreciation reduce किया जा सकता है. Aging के साथ हो रहा है. Physical capital में तो जैसे होगा और deplete हो जाएगा, लेकिन human capital में obviously होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन एजिंग के साथ, बट वो रिड्यूस किया जा सकता है टू अ लार्ज एक्सटेंट थ्रू कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. अगर आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट, तो इमेजिन मैंने आज एजुकेशन ले ली, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, एंड अगर मैं ये ना पढ़ा रही होती आप लोगों को, तो विद एजिंग मेरी जैसे जैसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज है वो कम होती जाती है. ऑब्वियसली कोई चीज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फुल टाइम नहीं करोगे, तो आपको याद नहीं रहेगी. दैट देयर इज अ टेंडेंसी कि यू नो देयर समबडी हु से 40 year old, let's hypothetically take a person who's 40 year old and who maybe studied accountancy subject in commerce in class 12th, but now he's doing something else of his own. So how come you expect him to remember accountancy until and unless he invests in education again, or he invests in revising that again? Right? You understanding what I'm saying? Okay, perfect. So nature of benefits flowing from human capital are different from that of physical capital. Human capital benefits not only the owner but also society in general. Human capital बनेगा, कोई भी टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो अपने आप को ही मदद नहीं करेगा, वो सोसाइटी को भी मदद करेगा. This is called external benefit. An educated person can effectively take part in a democratic process and contribute for the socio-economic progress of a nation. A healthy person, by maintaining personal hygiene and sanitation, stops the spread of contagious disease and epidemics. So वो benefit बता रहे हैं human capital का. Human capital creates both private and social benefit, whereas physical capital creates only private benefit. That is, benefit from capital good flow to those who pay price for the product and services produced by it. ये boxes में clearly उन्होंने समझाया difference between physical and human capital. They've shown it to you through similarities and through some dissimilarities as well. So the concept of physical capital is based for conceptualizing human capital, and there are some similarities between two forms of capital. There are some striking dissimilarities as well. Okay. So human capital and economic growth, ये कैसे इंटरलिंक्ड है? हु कंट्रीब्यूट्स मोर टू नेशनल इनकम? एक वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है या एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल? वी नो दैट द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ an uneducated person, and that the former generates more income than the latter. So economic growth का मतलब होता है the increase in real national income of the country. Naturally, the contribution of the educated person to economic growth is more than illiterate person. And if a healthy person could hold on, yeah, could provide uninterrupted labor supply for longer period of time, then health is also an important factor. तो वैसे तो देखो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो ऑब्वियसली अगर आप एजुकेटेड पर्सन के स्किल्स देखोगे वो बेटर है, पर अगर दो एजुकेटेड पर्सन ले लिए तो उसमें से भी उसका स्किल बेटर है जो हेल्दी है कंपैरेटिवली, इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट. दस बोथ हेल्थ एंड एजुकेशन अलोंग विद मेनी अदर फैक्टर्स लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन increase individual income generating capacity. Okay, so that's the part. Okay, hold on. So this enhanced productivity of human beings or human capital contributes substantially not only towards increasing labor productivity but also stimulates innovation and create ability to absorb new technologies. Okay, so education provides knowledge to understand changes in the society, and scientific advancements thus facilitate inventions and innovation. Similarly, the availability of educated labor force facilitates adaptation to new technologies. Empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous. So ऐसा कोई empirical evidence नहीं है, but this may be because of measurement problems. For example, education measured in terms of years of schooling. ठीक है, अगर एजुकेशन को हम मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग या टीचर टू प्यूपिल रेशियो एंड एनरोलमेंट रेट्स मे नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. उससे क्वालिटी नहीं पता चल रही आपको, right? Health services measured in monetary terms
life expectancy and mortality rates may not reflect the true health status of the people in a country. Using the indicators mentioned above, an analysis of improvement in education and health sector and growth in real per capita income in both developing and developed countries show that there is a convergence in the measures of human capital, but no sign of convergence of per capita real income. In other words, human capital growth in developing countries has been faster, but the growth of per capita real income has not been that fast. ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ फास्ट हुआ है बट पर कैपिटा रियल, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ फास्ट हुआ है, अगर ह्यूमन कैपिटल बन रहा है, तो उस हिसाब से वो पर ह्यूमन जो कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन इनटू द रियल इनकम भी बढ़ना चाहिए। पर ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ जल्दी हुई है, लेकिन उनका जो रियल पर कैपिटा रियल इनकम है, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, तो पर पर्सन पर कैपिटा रियल इनकम मतलब रियल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, व्हिच एक्चुअली सेज कि अगर मैं डेवलप हो रही हूँ तो मेरी इनकम भी डेवलप होनी चाहिए, अगर मैं ह्यूमन कैपिटल बन रही हूँ तो मेरी पर कैपिटा यानी जो रियल इनकम में मेरी कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़नी चाहिए, बट मैं तो डेवलप हो रही हूँ पर मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ रही, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। एंड इसमें देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट casualty between human capital and economic growth flows in either directions. That is, higher income causes building of higher level of human capital and vice versa. That is, high level of human capital causes growth of income. Okay. So India recognized the importance of human capital in economic growth long ago. And इसी वजह से जो हमारा 7th 5-year plan था, which says human resources development, read the human capital basically as has necessarily been assigned a key role in any development strategy, particularly in country with large population. So कौन से 5-year plan ने human capital पे focus किया था? 7th 5-year plan ने human capital पे focus करा था, very important point. ठीक है, trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in desired directions. It is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital, education and health to economic growth, but we can see that in table 4.1 that these sectors have grown simultaneously. Growth in each sector probably has reinforced the growth of एवरी अदर सेक्टर, यानी एक सेक्टर की अगर ग्रोथ होती है तो वो दूसरे सेक्टर को साथ में लेके चलती है। कहते हैं अगर मैं साथ चलूंगी और मेरी ग्रोथ होगी तो मेरे फैमिली की अपने आप ग्रोथ होगी। सिमिलरली एक सेक्टर की ग्रोथ हुई है तो वो सारे सेक्टर्स को साथ में उसने पुल करा है। ठीक है, अब 1951 देन 1981 देन 1991 2001 एंड 2016-17 तक का अपडेटेड डेटा है एंड इंडिकेटर्स है ये एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स के। रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पहले 7600 थी अप्रोक्सीमेट, फिर 12,000 हुई, फिर 15,000 हुई, फिर 23,000 हुई और अब बढ़ के कितनी हो चुकी है? सबसे ज्यादा जंप यहाँ पर आया रियल पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, देन क्रूड डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन में से कितना डेथ रेट है पर 1000? 25 सबसे ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, बट और यहाँ पे कम हुआ। सबसे ज्यादा कम गैप यहाँ पे हुआ था, मतलब एक बार ही कम हुआ फिर कम होता गया। ओके, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कितने बच्चे पैदा होते ही मर जाता है विद इन 1 ईयर इन्फेंट, तो 146, देन 110 हुआ, 80, 63, आज की डेट में 33। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मेल एंड फीमेल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप पैदा हुए हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि आप जब पैदा हुए हो तो आप वहां से बता रहे हैं कि कितने साल जियोगे, कितनी एज तक मैं जीऊंगी। तो मेल में और फीमेल में, मतलब 1951 में ऐसा था कि आदमी पैदा हुआ वो 37 ईयर्स जिएगा एंड फीमेल 36 ईयर्स ही जिएगी। 1981 में ये चीज 30 साल में बदली, 54 ईयर्स होता था पहले एंड फीमेल का भी 54 ईयर्स होता था। फिर 1991 में 59 एंड 60 ईयर्स पे आया, 2001 में 63 ईयर्स 66 ईयर्स हुआ एंड राइट नाउ इट इज सेड दैट अ मैन life expectancy for a man is 67 years and for female it's 70 years. Okay, आदमी 67 years तक जिएगा, फीमेल 70 years तक जिएगी। ट्रस्ट मी, ये जेंडर डिविजन भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अभी हुआ है, पहले नहीं था ये। मतलब बैक देन जब मैंने ये चैप्टर पढ़े थे अपने, जब मैं स्कूल में थी तो ये डिविजन नहीं था, बस एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा दिया था। सो आई फील कि जेंडर में भी कुछ होता है डिफरेंस, क्यों वुमेन आर टेंड टू एक्सपेक्टेड दैट दे विल लिव लॉन्गर एज कंपेयर्ड टू मेन। ओके, लिटरेसी रेट आप देख लो, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट
16.67 से लेके 76 तक पहुंच चुका है 2016-17 ईयर में। ठीक है, सारा ही डेटा इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है। ओके, सो या द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पे बहुत बात होती है। सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 states that the world is undergoing rapid changes in knowledge landscape with various dramatic scientific and technological advances such as rise of big data, machine learning, artificial intelligence. Many unskilled jobs worldwide have been taken over by machine. Okay, and while the need for a skilled workforce, particularly involving mathematics, computer science, and data science in conjunction with multidisciplinary abilities across the sciences and social sciences and humanities, will be increasingly in greater demand. So हम कह रहे हैं जो unskilled jobs थी, जो जिसमें ज्यादा skill required नहीं होता था, वो replace कर लिया मशीनों ने। एंड वो मशीन चलाने के लिए हमें स्किल लेबर चाहिए जो कि वेल इक्विप्ड हो मैथमेटिक्स में, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में, मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज हो। मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज की अगर मैंने कॉमर्स किया तो मुझे डेटा साइंस भी आता हो, डेटा एनालिटिक्स भी आता हो, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स विल बी इन ग्रेटर डिमांड, ठीक है। सिमिलरली अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो राइजिंग पॉपुलेशन भी है, तो डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड इसी वजह से देयर विल बी अ साइजेबल शिफ्ट इन हाउ वी मीट वर्ल्ड्स एनर्जी, वाटर, फूड एंड सैनिटेशन नीड्स, अगेंस्ट रिजल्टिंग नीड फॉर न्यू स्किल लेबर्स, पर्टिकुलरली इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर। तो अभी ऊपर उन्होंने कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज का कंजंक्शन बोला कि कैसे रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर अलग फील्ड्स में बोल रहे हैं कि इस फील्ड में भी स्किल्ड वर्कर्स जरूरी है कि वो सर्च कर पाए कि यार एनवायरनमेंट में दिक्कत आ रही है तो कैसे ठीक करना चाहिए। द ग्रोइंग इमर्जेंस ऑफ एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स विल आल्सो कॉल फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च इन इन्फेक्शियस। तो मेडिकल फील्ड में भी जरूरत है स्किल्ड वर्क की, स्किल्ड लोगों की। There will be growing demand for humanities and arts as India move towards becoming developed country as well as among the 3 largest economies in the world. So humanities and arts की भी बहुत requirement है। humanities and arts आप लेते हो, आपने देखा इसमें आप सब्जेक्ट्स होता है, पॉल साइंस होता है आपका, देन अलग अलग हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। तो जब आपने इंडिया अगर डेवलप नेशन की तरफ है और इंडिया डेवलप बनने वाली है तो आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। मेनी सिविल सर्वेंट्स go through the humanities and arts subject to become to go into policy making, so which is why arts and humanities is also important. So इसीलिए ये सबको ध्यान में रखते हुए जब उन्हें पता चला कि एजुकेशन लैंडस्केप बहुत चेंज होता जा रहा है एंड हर फील्ड में स्किल्ड वर्क की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। ठीक है, सो द पॉलिसी विजन सजेस्ट, क्या बोल रहे हैं एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, द पॉलिसी विजन सजेस्ट हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया विल मूव इट्स इकोनॉमी टू अ हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बेस्ड ऑन नॉलेज लैंडस्केप। ओके, then next human capital and human development, but before that ये पढ़ लो, human ये box पढ़ लेते हैं, India as a knowledge economy. So the Indian software industry has been showing an impressive record over the past 2 decades. Entrepreneurs, bureaucrats, politicians are now advancing views about how India can transform itself into knowledge-based economy. बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में लोग पढ़ते जा रहे हैं तो हम अपने आप को और ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। देयर हैव बीन some instances of villagers using email which are cited as an example of such transformation. So look at this, like villagers using emails is a huge thing, right? Likewise, e-governance is being projected as way of future. The value of IT depends greatly on existing level of economic development. So IT depend करता है, IT से economic development होती है, but इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है उस पर भी आईटी का ग्रोथ डिपेंड करता है। ठीक है, सो डू यू थिंक आईटी बेस्ड सर्विसेज इन रूरल एरियाज विल लीड टू ह्यूमन डेवलपमेंट? यू नीड टू डिस्कस एंड दैट कैन बी अ क्वेश्चन आल्सो इन योर एग्जाम। ऑल राइट, ओके, परफेक्ट। लेट्स गो टू ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सो द टू टर्म्स साउंड सिमिलर, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही सिमिलर लगते हैं, ठीक है, पर डिस्टिंक्शन है दोनों में और जरूरी है कि हमें भी बताओ क्या डिस्टिंक्शन है। ओके, सो या ह्यूमन कैपिटल कंसिडर करता है एजुकेशन एंड हेल्थ को एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर मैं लेबर हूँ और मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मुझे बेटर परफॉर्म करना है, कोई भी काम मुझे बेटर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं एजुकेशन एंड हेल्थ पे ध्यान दूं। अगर मेरी हेल्थ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचर हूँ, ठीक है, एंड अगर मुझे और लाइफ में ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है,
तो मेरे को कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहने की जरूरत है. आई शुड नॉट थिंक दैट आई एम द बेस्ट एंड आई मीन आई एम द बेस्ट. इट्स लाइक दैट, बट यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, बी अ लर्नर योरसेल्फ टू teach somebody. I feel so if you are going out in the market to teach, you need to upskill your education. Okay, and you need to be better in your health, like in a better health condition, as I said initially in the beginning of the chapter also, that if I'm coming here to teach and if I'm not feeling well, it will prove in the class that I'm not being so productive and it will show up. सो वन शुड बी, यू नो, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल कंसिडर करते हैं कि अगर आप एजुकेशन हो और हेल्थ हो तो एक मीन्स है वो इंक्रीज करने का मेरी प्रोडक्टिविटी को. ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड होता है एक आइडिया पे कि एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट and ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they value. तो ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल बात कर रहा है काम की, प्रोडक्टिविटी की. डेवलपमेंट बात कर रहा है ओवरऑल बेटर चॉइस करने की एज ए ह्यूमन बीइंग. इतनी सी बात है. ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज मीन्स टू एन एंड. ह्यूमन, ओके, I'll change the color. Human capital treats human beings as a means to an end. Means है to an end. The end क्या है? End है increase productivity. तो means टू एंड, मुझे एंड पे जाना है. एंड है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मेरा एंड है. ठीक है. और मीन्स क्या है? ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन बीइंग. तो जब ह्यूमन बीइंग यूज होते हैं टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मीन्स है एंड एंड है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं. ठीक है. इन दिस व्यू एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर मेरे को, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अब इन्वेस्टमेंट देखो एजुकेशन में दो तरह की हो सकती है. अगर मैं और ज्यादा पढ़ाई करने निकलती हूँ, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर्स करी हुई है इकोनॉमिक्स में, मैं स्पेंड करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ अपनी एजुकेशन में, मैं पीएचडी करने जाती हूँ. अगर मैं पीएचडी बस शौक में कर रही हूँ, शौक शौक में, मुझे पसंद है, तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाएगा. ह्यूमन कैपिटल कब कहलाएगा? जब मैं वो पीएचडी करके अपनी जॉब में कुछ बेटर कर रही हूँ और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही हूँ. अगर वो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में यानी पीएचडी करने में मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रही या आउटपुट नहीं बढ़ा रही गुड्स एंड सर्विसेज का, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की ह्यूमन कैपिटल नहीं कही जाएगी. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग, वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा. ठीक है. इन द ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, अब इसी चीज को ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्व्स. इसका मतलब क्या है? ये इंग्लिश में दो चीजें बोल रहे हैं आपको, पर आप समझोगे तो आपको ये पता है कि अगर मैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट करूं, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है, इंसान, ह्यूमन बीइंग एक तरीका है इंक्रीज करने का, पर जो हमारा एंड है, हम हमेशा एंड गोल पे ध्यान देते हैं. एंड गोल जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है. तो अगर ये ह्यूमन बीइंग अपने ऊपर काम भी कर रहा है पर इससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, तो ये ह्यूमन बीइंग ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाएगा. ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हम एंड गोल देखें तो एंड गोल इंसान है अपने आप में, कि इंसान को अपना अच्छा करना चाहिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है. वहां एंड क्या था? प्रोडक्टिविटी. ह्यूमन कैपिटल में एवरीथिंग इज कंसर्न विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही तो तुम भाड़ में जाओ, तुम ह्यूमन कैपिटल नहीं हो. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है. ह्यूमन डेवलपमेंट में एंड क्या है? इंसान खुद. तो अगर आप ग्रो कर रहे हो, अगर मैं पीएचडी करती हूँ और उससे मेरी ग्रोथ हो रही है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, और जब मैं पीएचडी करने जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए अच्छा है, तो मैं ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मैं ह्यूमन डेवलपमेंट हो गई है, पर मैं ह्यूमन कैपिटल नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने पीएचडी करी शौक के लिए, ना कि उससे जॉब चेंज करके और ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए. जबकि ह्यूमन कैपिटल को मतलब था सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से. रही मैं अभी भी यही आपको ही आके पढ़ाती हूँ, तो अगर मैंने, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने मास्टर्स करी है, मैं पीएचडी करूँ या नहीं करूँ, आपको तब भी मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ पीएचडी करे बिना.
मैं पीएचडी कर लूंगी तो भी अगर आपको ही पढ़ाऊंगी तो आपके लिए कंसर्न नहीं है। तो मैं भी अभी यही दे रही हूँ, मैं कोई अपना अकेडमी नहीं खोल लिया, कुछ नहीं कर लिया, तो प्रोडक्टिविटी आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़े पीएचडी करने से भी। तो पीएचडी ने मेरी डेवलपमेंट तो की, ह्यूमन डेवलपमेंट, पर वो ह्यूमन कैपिटल नहीं साबित हुई। ह्यूमन कैपिटल क्या मतलब होता है? अगर मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती, अगर मैं जॉब स्विच करती, अगर मैं बेटर परफॉर्म करती, अगर मैं रियल इनकम में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करती, तो मैं ह्यूमन कैपिटल। गॉट इट? गॉट द मेजर डिफरेंस? परफेक्ट। Yeah. Human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment do not result in higher labor productivity. कितनी ही ब्यूटीफुल बात बोली है उन्होंने कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़े ना बढ़े, पर ह्यूमन वेलफेयर इंक्रीज। तो यही मैं बोल रही हूँ कि अगर मैंने पीएचडी करी तो मेरा वेलफेयर इंक्रीज होगा, मेरी डेवलपमेंट होगी, चाहे फिर वो लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे ना करे, पर ह्यूमन वेलफेयर फिर भी इंक्रीज करते रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट करके। तो इन्वेस्टमेंट तो दोनों ही केस में जरूरी है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, चाहे वो ह्यूमन वेलफेयर बढ़ाए। Okay, therefore, basic idea, basic education and basic health are important in themselves, irrespective of their contribution. यही मैंने कहा कि बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लेबर प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करे ना करे। लेबर प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर देगा तो ह्यूमन कैपिटल आ जाएगा, और अगर नहीं भी करेगा तो ह्यूमन वेलफेयर से ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। बट इन एनी केस इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो इन सच अ व्यू, every individual has a right to get basic education and basic healthcare. That is, every individual has a right to be literate and lead a healthy life. All right. Okay, perfect. Let's see. अभी हमारा चैप्टर कितना है? Are we going to finish it by today? Okay. All right. स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि अभी इंडिया में स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रेजेंटली क्या है? ठीक है, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू एनालाइज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, कि अगर इन्वेस्टमेंट होगी एजुकेशन में तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा, हेल्थ में होगी तो फॉर्म होगा। ये सोर्सेस थे ह्यूमन कैपिटल के, राइट? इनमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो ह्यूमन कैपिटल और ज्यादा बनेगा। ऑफ दीज एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी सोर्स क्या है? एजुकेशन है, पर एजुकेशन और हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद अ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज एंड विलेज पंचायत। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन करता है कि जो फंक्शंस हैं टू बी कैरिड आउट बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Accordingly, expenditure on both education and health are to be carried out simultaneously. आपको expenditure जो ऐसे नहीं बोल सकते आज एजुकेशन पे कर रहे हैं कल हेल्थ पे कर रहे हैं, आपको दोनों ही simultaneously carry out करने पड़ेंगे। ठीक है, तो that is the thing. Okay, so an analysis of health sector is taken up in next chapter. Okay, so you don't have that chapter right now. Hence, we will analyze only education sector here. So right now, we'll only analyze education sector. Okay. Do you know who takes care of education and health in India? Do you have any clue? Before we take up the analysis of education sector in India, we will look into the need of government intervention in education and health sector. So, कौन ध्यान रखता है इस सेक्टर का? ठीक है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या मिलता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में? We do understand that education and healthcare services create both private and social benefits, and this is the reason for existence of both private and public institution in education and health. ठीक है, दोनों के लिए ही बेटर है। आपने गवर्नमेंट स्कूल्स देखे, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखे, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल देखे, आपने प्राइवेट स्कूल्स देखे हैं। लेट्स नॉट गो देयर कि कौन से बेटर होते हैं क्वालिटी में, वो अलग डिबेट है ऑल टुगेदर। हम किताबी नॉलेज की अभी बात कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी आपको कहना चाह रही है कि एक्सपेंडिचर ऑन education and health make a substantial long-term impact and they cannot be easily reversed. Hence, government intervention is essential. Okay, for instance, if once a child is admitted to a school or healthcare service center where the required services are not provided, before the decision is taken to shift the child to another institution, substantial amount of damage would have been done. Moreover, individual consumers of these services do not have complete information about the quality of services and their costs. ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन प्रोवाइडर है जो एजुकेशन का और हेल्थ सर्विसेज का, वो अक्वायर करता है मोनोपोली पावर। ओके, तो ये एक चीज हो गई, मोनोपोली पावर एक्वायर हो जाती है आपकी, and are involved in exploitation.
तो कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है ना आपको। आप एडमिट हो गए एक जगह, आपका हाल बिगाड़ दिया, फिर आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तब तक आपका हाल तो खराब हो गया, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो स्कूल हो, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। सो इसीलिए रोल ऑफ गवर्नमेंट इस सिचुएशन में ये होता है कि वो इंश्योर करे कि जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स है सर्विसेज के, वो कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, ठीक है, एंड वो करेक्ट प्राइस भी चार्ज करे। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि अगर एजुकेशन एंड अगर हेल्थ इतना ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एंड ह्यूमन कैपिटल के लिए, ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो इस वजह से इट इज क्रिटिकल कि ये सेक्टर्स का ध्यान रखा जाए। In India, the ministries of education at union and state level departments of education and various organizations like National Council, NCERT की बात हो रही है, National Council of Educational Research and Training, University Grant Commission UGC, and All India Council, इनकी फुल फॉर्म याद रखना, and All India Council of Technical Education, ठीक है। सो ये फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं institutions which come under the education sector. So आपने देखा एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। Similarly, the ministries of health at union and state level department of health and various organizations like National Medical Commission and Indian Council for Medical Research ICMR facilitate करते हैं इंस्टीट्यूशन को जो हेल्थ सेक्टर में आता है। तो अभी वो इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं जो फैसिलिटेट करता है एजुकेशन सेक्टर को, जो फैसिलिटेट करता है हेल्थ सेक्टर को। In a developing country like India, with a large section of population जो कि रहती है below poverty line, many people cannot afford access to basic education and healthcare facilities. बहुत लोगों को basic healthcare and educational facilities भी नहीं मिल पाती, ठीक है। Moreover, a substantial sector of India's population cannot afford to reach super speciality healthcare and higher education. पहुंच ही नहीं पाते, basic भी नहीं मिल रही तो super speciality तो भूल जाओ। Furthermore, when basic education and healthcare is considered as right of citizens, then it is essential that the government, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि राइट है एक इंडिविजुअल का, तो फिर गवर्नमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो भी प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द डिजर्विंग सिटीजन्स। बिकॉज सी वो कहना क्या चाह रहे हैं पूरे केस में, ऑल दे आर ट्राइंग टू कन्वे इज कि उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे एजुकेशन में हेल्थ में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं, कुछ ऐसे रूल्स बनाया है जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को मानने पड़ेंगे, तभी आप किसी गवर्नमेंट स्कूल चले जाओ या प्राइवेट स्कूल चले जाओ, एनसीईआरटी दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है, पेपर सबका एक ही बनता है, ओके। पर वो कह रहे हैं इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है इसका मतलब क्या, वो हेल्थ और एजुकेशन मिलेगी नहीं उन्हें। पर हमें पता है कि ह्यूमन कैपिटल हो जो प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है, या ह्यूमन डेवलपमेंट हो जो ह्यूमन वेलफेयर पे फोकस करता है, दोनों में बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ तो कंट्री को चाहिए। तो फिर ऐसे में गवर्नमेंट का रोल आता है कि यार जब लोग गरीब है, लोग प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोग एक डिसेंट प्राइसिंग भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, और बाकी के जो है वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर देंगे, तो फिर, और वो राइट ऑफ सिटीजन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि राइट ऑफ सिटीजन है। ऐसे में गवर्नमेंट को लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिजर्विंग सिटीजन को वो बेनिफिट्स देने चाहिए। Both the union and the state governments have been stepping up expenditures in education sector over years in order to fulfill the objective of attaining cent% literacy। ऑब्जेक्टिव है 100% मतलब 100% लिटरेसी हो। अभी हमने देखा 74% लिटरेसी है, हमारा एम है 100% तक जाने का। एंड इंक्रीज द एवरेज एजुकेशनल अटेनमेंट्स ऑफ इंडियंस का एवरेज जो है वो इंक्रीज हो एजुकेशनल अटेनमेंट का, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर है इंडिया में, तो ये दिस इज 4.6, लेट मी सी हाउ मच इज लेफ्ट। Okay, so guys, 4.6 से we'll continue in part 2. I don't want to, drag it for you guys extremely lamba. So we'll cover rest of the part in part 2 from educational sector in India. Okay, so I hope you understood. कोई भी doubt रह जाता है, write it to me. You can write it to me on YouTube, anywhere in the comment section. You can write it to me on Telegram group, जिसका link मैंने description में दिया है. You can write it to me on my email ID. Okay, so yeah, anywhere you would like, you can write it to me, and I'll definitely be happy to help. And thank you so much for sharing the feedback. So my previous year students are sharing the